بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلو گائز، تو کیسے ہیں آپ؟ جی کے ایجوکیشنز میں خوش آمدید۔ چلو آؤ آج کی ہم ویڈیو اسلامک ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کو کسی بھی کوسچن کا جواب پہلے سے پتہ ہے تو 5 سیکنڈ کے اندر آپ کمنٹ میں سوال: مسلمانوں پر عید الفطر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جواب: سنت موقدہ ہے۔ سوال: کون سا پھل فریج میں رکھنے سے زہر بن جاتا ہے؟ جواب: تربوز۔ سوال: جنت میں کون سی چیز نہیں ہوگی؟ جواب: موت، داڑھی، بڑھاپا۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جن کے 19 بیٹے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کس انسان سے دوستی کرنے سے منع فرمایا ہے؟ جواب: کافر سے۔ سوال: کس نبی کی قوم بادلوں کی گرج سے ہلاک ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال: جہنم میں سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ جواب: منافق کو۔ سوال: دنیا کا پہلا انسان کس دن پیدا ہوا تھا؟ جواب: جمعہ کے دن۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کے کیا معنی ہیں؟ جواب: مایوس۔ سوال: کون سی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے؟ جواب: اذان کی آواز سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری کے وقت کس نے نماز پڑھائی تھی؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: عرب کا مشہور میوہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: کھجور کو۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے کتنے لوگ موجود تھے؟ جواب: 200 آدمی۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کس خلیفہ کے دور میں وفات پا گئے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے پانی کو کس دن پیدا فرمایا تھا؟ جواب: بدھ کو۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: خواب میں کون سی چیز دیکھنے والے کا نیا سال اچھا گزرتا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیتے تھے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال: بروز قیامت مومن کے نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز کیا ہوگی؟ جواب: حسن و اخلاق۔ سوال: ایسا کون سا عمل ہے جو ہر انسان کا قبول ہوتا ہے؟ جواب: درود پاک پڑھنا۔ سوال: سب سے بدترین جھوٹ کون سا ہے؟ جواب: بدگمانی۔ سوال: معراج شریف سے پہلے امت پر کون سی نمازیں فرض تھیں؟ جواب: فجر اور عصر کی نماز۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کس شہر میں ہوا؟ جواب: دمشق میں۔ سوال: کس وقت کی نماز قضا پڑھنا حرام ہے؟
जवाब जुमा की नमाज। सवाल वो कौन सी चीज़ है जिसको गुनाह की जड़ कहा जाता है? जवाब दुनिया की मोहब्बत। सवाल दिल की घबराहट को दूर करने के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरत आलम नशरा। सवाल क्या आपको मालूम है कि लफ्ज़ कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? जवाब 5 सूरतें। सवाल कौन सी चीज़ खाने के बाद दवा की जाए तो दवा कबूल नहीं होती? जवाब हराम का लुक़मा। सवाल क्या आपको मालूम है कि जहन्नम की 7वीं मंजिल में किसको रखा जाएगा? जवाब मुनाफिक को। सवाल वो कौन सी मखलूक है जो इंसानों के दिलों के हाल जान लेती है? जवाब अमाल लिखने वाले फरिश्ते। सवाल इस सूरत का नाम बताएं जो 2 बार नाज़िल हुई थी। जवाब सूरत फातिहा। सवाल कौन सा गुनाह खाना काबा को गिराने से भी ज़्यादा ख़तरनाक है? जवाब नाहक कत्ल करना। सवाल कौन सी नेकी इंसान को बुरी मौत से बचाती है? जवाब सदका देना। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसकी तौबा इंसान नहीं मांग? जवाब खुदकुशी करना। सवाल नाखून टूटने पर सदका देना क्यों ज़रूरी हो जाता है? जवाब नाखून ख़तरनाक जिस्मानी बीमारी से भी टूट जाता है, लिहाजा जब भी नाखून टूटे तो सदका देना चाहिए और ज़िक्र के ज़रिए अल्लाह ताला की पनाह भी मांगनी चाहिए। सवाल कुरान मजीद की किस सूरत को उम्मुल किताब कहा जाता है? जवाब सूरतुल फातिहा को। सवाल अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ कलाम क्या कहलाता है? जवाब वही इलाही। सवाल मराज के सफ़र के वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? जवाब 51 साल। सवाल कब्र में मुनकर नकीर कितने सवाल करते हैं? जवाब 3 सवाल। सवाल किस मौका पर धोखा देना जायज़ है? जवाब जंग में। सवाल किस इंसान की दवा फरिश्तों की दवा की मानद है? जवाब बीमार मुसलमान की। सवाल अल्लाह ताला ने क़यामत तक किस मखलूक को आज़ादी दे रखी है? जवाब शैतान को। सवाल मराज शरीफ का तोहफ़ा किस चीज़ को कहा जाता है? जवाब नमाज को। सवाल आम मुसलमानों में सबसे बुलंद दर्जा किसका होता है? जवाब मुत्तकी और परहेज़गार का। सवाल किस सूरत की तलावत करने वाला कब्र के अज़ाब से महफूज रहेगा? जवाब सूरतुल मुल्क की। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसको छोड़े बगैर कोई भी नेकी कबूल नहीं होती? जवाब शिरक करना। सवाल क्या कब्र पर बैठने से गुनाह होता है? जवाब जी हाँ गुनाह होता है। सवाल वो कौन सी मस्जिद है जहाँ मुनाफिक नमाज पढ़ते हैं? जवाब मस्जिद ज़रार। सवाल कौन से 5 कामों में जल्दी करने का हुक्म है?
जवाब मेहमान को खाना खिलाना, मैयत को दफन करना, लड़कियों का निकाह करना, कर्ज अदा करना और गुनाहों से तौबा करना। सवाल, क्या सफ़र में वितर की नमाज छोड़ सकते हैं? जवाब नहीं छोड़ सकते। सवाल, सबसे ज़्यादा गनी इंसान कौन होता है? जवाब हाफ़िज़ कुरान। सवाल, किस चीज़ को औरत का सबसे अच्छा जेवर कहा गया है? जवाब हया को। सवाल, हदीस के मुताबिक कौन सा फल जिस्म के अंदरूनी हिस्सों को साफ़ करता है? जवाब इनार का रस। सवाल, अल्लाह ताला किस वक़्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ़ लाते हैं? जवाब तहज्जुद के वक़्त। सवाल, जहन्नम में औरतें किस गुनाह की वजह से ज़्यादा होंगी? जवाब शोहर की नाशुक्री की वजह से। सवाल, पड़ोसियों को तंग करने वाला किस जगह नहीं जा सकेगा? जवाब जन्नत में। सवाल, वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से मुसीबत आती है? जवाब दिखावे की नमाज। सवाल, बैतुल खला में कौन सा अमल करना शैतान को दावत देना है? जवाब रोना। सवाल, क्या जन्नत में कोई जन्नती बग़ैर निकाह के यानी कंवारा होगा? जवाब जी नहीं, कोई नहीं होगा। सवाल, क्या मरने वाले को पता चलता है कि इसके लिए किसी ने दवा की है? जवाब जी हाँ, इसको बताया जाता है। सवाल, बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म कुरान मजीद की किस सूरत में आया है? जवाब सूरतुल बकरा में। सवाल, किन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया को जन्नत कहा है? जवाब काफरों के लिए। सवाल, वो कौन सी सूरत है जो दवा भी है और शफा भी है? जवाब सूरतुल फातिहा। सवाल, वो कौन से नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करने आएंगे? जवाब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, वो कौन सी इबादत है जिसके सवाब की कोई हद नहीं है? जवाब रोज़ा। सवाल, वो कौन सा दिन है जो क़यामत के दिन दुल्हन की तरह तैयार होगा? जवाब जुमा का दिन। सवाल, कौन सी नमाज छोड़ने पर गोया सब कुछ तबाही हो जाता है? जवाब असर की नमाज। सवाल, किस सूरत की तलावत दज्जाल के फितने से बचाएगी? जवाब सूरत कहफ की। सवाल, दज्जाल का दुनिया में कितने दिन फसाद जारी रहेगा? जवाब 40 दिन तक। सवाल, वो कौन सा नेक अमाल है जिसका सवाब मरने के बाद भी मिलता रहता है? जवाब सदका जारिया। सवाल, मजाक में कौन सा अमल करने से कब्र में एक बिच्छू पैदा हो जाता है? जवाब गाली देना। सवाल, नमाज के लगवी मानी क्या हैं? जवाब दुआ करना। सवाल, जन्नत की हूर किस सहाबी के इंतज़ार में है? जवाब हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल,
किस नबी की उम्मत से सबसे पहले हिसाब लिया जाएगा? जवाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से। तो सो गाइस, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? उम्मीद करते हैं आपको कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक शेयर लाजमी कीजिएगा। तो